Hello everyone, welcome back to our YouTube channel, and today we are going to start the last topic of our first chapter, that is evaporation. So what does it mean? How can you understand evaporation? What is the process of evaporation? So before moving on to its main definition, we will discuss about few points that are very necessary. As we all know, the particle of matter are at motion. We have studied about this in our previous videos that particles of matter are always moving. Only the difference is some particle having high kinetic energy and some particles are having lower kinetic energy. So फिर जो मैटर के पार्टिकल्स हैं दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग. तो भी इनमें डिफरेंस क्या है? किसी के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी थोड़ी कम है और किसी के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी थोड़ी ज्यादा है. बट all the particles of each and every state of matter are in motion. In this video we are talking about specially liquid, about which we are talking about liquids. If we draw the particles of liquid, they are at moderate spacing and also have the force of attraction, right? So particles of liquid are also in motion, but one thing is that the particle of the surface, outer surface, कि अगर हमने किसी भी बीकर में या किसी एक ग्लास में, if we take water in a glass and the glass is half filled, then each and every particle, or we can say that each and every molecule of water is in motion, but the particle at the outer surface, कि जो हमारा water है उसकी आउटर सरफेस पे जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है. इट मींस द पार्टिकल ऑफ आउटर सरफेस, पार्टिकल, हाउ कैन वी राइट दिस, पार्टिकल्स एट आउटर सरफेस आर हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी, आर हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी. कि जो हमारा बल्क में अंदर, मतलब यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं इनके कंपैरिजन में आउटर सरफेस की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है. इट मींस उनकी काइनेटिक एनर्जी कंपैरेटिवली इतनी ज्यादा है कि जो मॉलिक्यूल्स का अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उसे ब्रेक करके लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में, कौन सी फॉर्म में, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं. इट मींस the particle at outer surface of liquid are having that much kinetic energy which is sufficient to break the attractive force of attraction, and the liquid converts into its vapor form. And this conversion of liquid into vapor below its boiling point, जनरली क्या होता है कि हम किसी भी लिक्विड को बॉईल करते हैं तो वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे वेपराइज होना स्टार्ट हो जाता है और वो लिक्विड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में जाता है. लेकिन इफ दिस कन्वर्जन इज हैपनिंग, दिस लिक्विड टू वेपर कन्वर्जन इज हैपनिंग below its boiling point, so this process is known as evaporation. But there are some other things related to evaporation process, so we will discuss them one by one. We have understand how liquid converts into vapor below its boiling point, and the process is known as evaporation. So but it is said that evaporation causes cooling. So how this cooling happen? So we have discussed that the particles are having sufficient kinetic energy, and by the use of that kinetic energy they break the intermolecular attractive forces and convert it into vapor. तो वो अपने जो एनर्जी है उसका यूज करके, उस एनर्जी का यूज करते हैं अपने बॉन्ड्स को, जो अट्रैक्टिव बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक करने के लिए, और वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं. लेकिन आफ्टर दैट व्हाट, कि पार्टिकल है यहाँ, इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी थी, जब ये वेपर में कन्वर्ट हो गया तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई क्योंकि उसने तो अपनी सारी एनर्जी यूज कर ली. बट वी नो दैट
पार्टिकल्स आर ऑलवेज एट मोशन, तो अभी इसके पास एनर्जी कहाँ से आएगी? सो व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग इवेपोरेशन, these particles absorb energy from their surrounding. From where? From surrounding. तो इस केस में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स थे उन्होंने अपनी काइनेटिक एनर्जी यूज करी इन अट्रैक्टिव बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए और कन्वर्ट हो गए वेपर फॉर्म में, बट स्टिल इट नीड्स एनर्जी। तो ये क्या करेंगे, जो आसपास की सराउंडिंग है वहां से एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और आफ्टर कन्वर्जन दे आर ऑल्सो हैविंग काइनेटिक एनर्जी। तो इस कन्वर्जन मतलब जो इवेपोरेशन प्रोसेस हुई इसके अराउंड क्या होता है कि जो हमारे पार्टिकल्स हैं, जो हमारा मैटर है, वो अपनी सराउंडिंग्स में से एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। तो अगर उसकी सराउंडिंग में से एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई तो मतलब क्या होगा, वहां एनर्जी कम हो गई, तो वहां पे कूलिंग इफेक्ट शो होगा। सो इन दिस मैनर इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। सो इफ समवन आस्क यू व्हाई इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, इवेपोरेशन कूलिंग क्यों करता है, तो इसके पीछे का प्रोसेस हमने समझ लिया है कि पार्टिकल्स ने अपनी काइनेटिक एनर्जी यूज की है अपनी अट्रैक्टिव फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए, लेकिन अब उन पार्टिकल्स के पास एनर्जी कम हो गई है, लेकिन उस एनर्जी को बैलेंस करने के लिए उन्होंने सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली। सो ड्यू टू विच व्हाट हैपेंस, जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो कम हो जाता है और एक कूलिंग इफेक्ट होता है। तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल है इस कूलिंग इफेक्ट के, कि हम सब ने देखा होगा कि जनरली हम क्या करते हैं, समर्स में कॉटन क्लोथ्स प्रेफर करते हैं। जो भी लोग हैं ऑफिस गोइंग पीपल और इवन नॉन वर्किंग पीपल, दे ऑलवेज प्रेफर टू वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर्स। व्हाई इट्स हैपन, बिकॉज जो कॉटन है ना उसकी जो प्रॉपर्टी है वाटर एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी है। क्या है? वाटर एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी। तो जब भी गर्मी में हमें पसीना आता है या स्वेटिंग होती है तो जो कॉटन के क्लोथ्स है हमारा पसीना एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्या करते हैं, हमारे स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेंगे। अब वो गीले हो गए हैं तो जो कॉटन के क्लोथ्स के अंदर जो हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो जैसे ही वो अपनी एनर्जी का यूज करके, काइनेटिक एनर्जी का यूज करके लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, तो उनकी एनर्जी कम हो गई है तो वो अपनी सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। उनकी सराउंडिंग क्या है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, हमारी बॉडी और ये कॉटन क्लोथ्स जो गीले हो गए थे, तो वो क्या करेंगे, हमारी बॉडी से और कॉटन के क्लोथ्स में से एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। तो जब हमारी बॉडी की एनर्जी कम हो गई, ये क्लोथ्स की एनर्जी कम हो गई, तो वहां कूलिंग इफेक्ट होगा और इसीलिए हमें कूलिंग इफेक्ट फील होता है और हमें ठंडा लगता है। कि जब हम समर्स में कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं तो हमें गर्मी थोड़ी कम लगती है और कूलिंग इफेक्ट रहता है कि हाँ ठंडक रहती है। सेकेंड एग्जाम्पल इज स्प्रिंकल वाटर। मतलब समर्स में क्या होता है, लोग जिनके कच्चे घर होते हैं, आजकल लोग तो ऐसे फर्श वाले घरों में भी करते हैं कि पानी छिड़क देते हैं, सब अपने आंगन में पानी छिड़क देते हैं। तो वो क्यों करते हैं कि जो मिट्टी है अब उसके ऊपर वाटर मॉलिक्यूल्स गिरेंगे तो मिट्टी गीली हो जाएगी। तो अब क्या होगा, इवेपोरेशन प्रोसेस होगा, क्योंकि अब उन पार्टिकल्स के पास कुछ एनर्जी है, तो ये पार्टिकल्स अपनी एनर्जी का यूज करेंगे और वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अगेन सेम थिंग, इनकी एनर्जी कम हो गई है, ये एनर्जी कहाँ से लेंगे, अपनी सराउंडिंग से। तो वो अपनी सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेंगे तो वहां कूलिंग इफेक्ट हो जाएगा। तो जो एरिया था जहां हमने पानी स्प्रिंकल किया था या पानी छिड़का था वहां पे ठंडक हो जाएगी। तो इसीलिए बोलते हैं कि गर्मियों में पानी छिड़क देना चाहिए, उससे थोड़ी ठंडक मिलती है। तो वो ठंडक कैसे मिलती है, उसके पीछे का प्रोसेस है ये इवेपोरेशन प्रोसेस। ओके, तो अभी तक हम अच्छे से समझ गए हैं कि हाउ इवेपोरेशन हैपेंस एंड हाउ इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। सो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि what is evaporation. So what we can say that conversion of liquid into vapor below its boiling point, this conversion is known as evaporation. and evaporation होता कैसे है कि जो liquid particles हैं वो अपनी kinetic energy का use करते हैं और अपने attractive जो bonds हैं उन्हें break करते हैं, and then
These particles absorb kinetic energy from surrounding. And इस वजह से क्या होता है, अगर वो not the kinetic energy, we can say that these particles absorb energy, right? These absorb energy from surrounding. तो इससे क्या होगा, जो हमारे सराउंडिंग है उनका टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है और वहाँ कूलिंग इफेक्ट फील होता है. So these are the two example. First one was the cotton clothes and second one was sprinkling of water in summer days. कि हम cotton clothes पहनते हैं तो हमें थोड़ा cooling effect feel होता है, and जब हम अपने आंगन पानी छिड़क देते हैं तो वहां पे भी कूलिंग इफेक्ट होते हैं. सो आई होप आप सबको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा. एंड इफ यू लाइक द वीडियो, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच.